ટોમેટોનો ભાવ મને નથી ખબર, આઈડિયા નથી જરા પણ ટોમેટોનો गेस करो 1 किलो ना कितना हशे 30 रुपीज़ पर केजी। तो आपको पता है कि ये टमाटर की कीमत क्या है अभी 1 kg की probably 40, 30 to 40. हाँ અરાઉન્ડ 100 રૂપીઝ છે શાયદ અભી. કિલોનો અરાઉન્ડ અત્યારે 80 રૂપીસ પ્લસ હાલે છે એટલું મને ખબર છે. फरक पड़े एनाથી ભાવ વધવાનો હા ફરક પડે, જેમ કે અત્યારે મેસ છે તો મેસમાં પેલા ટમેટા હતા બટ હવે ટમેટા નથી મળતા, હમણાં રેટ વધી ગયા છે તો आई थिंक अभी इसकी रेट डबल हो गई थी, मैंने ऐसा सुना था शायद, तो आई थिंक अराउंड 80 to 90 किलो 50-60 rupees per kg. इंदौर में जब आखिरी बार खरीदा था तब 40 रुपए था। कब आखिरी बार खरीदा हो गए 1-2 महीने हो गए होंगे इजीली। 60-65 I guess. 50 per kg. यू कि क्या लगता है इसका प्राइस क्या होगा 1 kg का 25 रुपए 1 kg का। हाँ 25 रुपए 80 रुपीज़ 20 रुपीज़ पर केजी। आपको क्या लगता है क्या होगा 1 kg? ये मेरा डोमेन तो है नहीं, मगर फिर भी अगर मैं बताऊं तो 20 रुपए में आ जाने चाहिए। ये 4 टमाटर नहीं 4 नहीं किलो बोल रही हूँ, किलो कितने में 25 कर दूं, 25 में आ जाए। 25 रुपए के किलो मैं जाऊंगा तो मैं तो 25 में ही लेके आऊंगा। राइट 100 रुपए किलो है 100 रुपये किलो हो गए। बाप रे। गरीबों को जो है, जो रेडी लगाते हैं या फिर जो मजदूरी करते हैं, उनके लिए ये बेसिक चीज़ें लेना बहुत महंगा हो जाता है प्राइस इन्फ्लेशन के कारण। तो अगर अभी हम सिचुएशन देखें तो इस टाइम पे तो अनयूजुअल रेन कंडीशंस की वजह से कुछ चीज़ों पे असर पड़ा भी है, तो उसकी वजह से कुछ टाइम के लिए महंगा हुआ है, ऐसा तो यानी साल भर महंगा ही रहता है, तो इतना तो हर कोई मैनेज कर सकता है। टमाटर का प्राइस अगर ज़्यादा है तो नहीं पसंद है, प्राइस थोड़ा लेस है तो पसंद है। और वैसे भी ये फ्रूट तो सारा सा मतलब ये वेजिटेबल तो सारा साल मिल ही जाती है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं। और मैं ज़्यादा खाता हूँ नहीं, आलू के प्राइस से फ़र्क पड़ता है मुझे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लोग खरीदना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते ये फिर। क्यों बढ़ रहा है महंगाई इतना डिस्कशन होगा इसका, डिस्कशन हमको कितना भले महंगा हो। एक टमाटर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। આજે રમેશ સુરેશ જે મળે બધાને પૂછી લેવું છે કે યાર તમને ખબર છે આ ટમેટાનો ભાવ કેટલો છે. અત્યારે ટમેટાનો ભાવ આસમાને પહોંચી ગયો છે, 100 રૂપિયા કિલો ભાવ થઈ ગયો છે. ખેડૂતો તો એમ પણ રડતા જ હતા, કારણ કે એમને જે ખેતી હતી એ બધી નિષ્ફળ ગઈ છે અને જે ગઈ છે એના પૈસા નથી મળતા. મધ્યમ વર્ગ પણ હવે રડી રહ્યો છે, એક એક ટમેટા કાપતા કાપતા એમના આંખમાં આંસુ આવી રહ્યા છે, કારણ કે ટમેટાનો ભાવ આસમાને પહોંચ્યો છે. તો અત્યારે એક કોલેજમાં આવ્યા છીએ અને કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાત કરવું છે. યુવાધનને હંમેશાથી કોઈ પણ હોય, યુવાધનને ધનની એટલી કંઈ પડી નથી હોતી, એમની પાસે પૈસા ના જોવા મળે વધારે. એટલે યુવાનોને પૂછવું છે, કારણ કે મોંઘવારી બહુ જ મોટો મુદ્દો છે. આ હું મજાકમાં વાત કરી રહી છું, પરંતુ મોંઘવારી ઉપર ખરેખર ચર્ચાઓ થવી જોઈએ, મોંઘવારી ઉપર વાત થવી જોઈએ. યુવાનોએ પણ આ વસ્તુ ઉપર ફોકસ કરવું જોઈએ. અત્યારના યુવાનો નથી કરી રહ્યા એ બીજી વાત છે, પરંતુ યુવાનોએ જાગૃત તો રહેવું જ પડે. એટલે મોંઘવારી કેટલી છે, કેવી છે, એ બધું જ જાણવું પડે, કારણ કે એના ઉપર આપણો આખો દેશ ટકેલો છે. એટલે યુવાનો સાથે વાત કરવી છે થોડી. શું નામ છે તમારું? कृपा व्यास વંશ પટેલ, તમે શેમાં ભણો છો? CSC CSE કોમ્પ્યુટર સાયન્સ. આ શું છે ખબર છે ને? ટોમેટો તમને ખબર છે કે આનો ભાવ કેટલો ચાલી રહ્યો છે અત્યારે? ટોમેટોનો ભાવ મને નથી ખબર, આઈડિયા નથી જરા પણ ટોમેટોનો ગેસ કરો 1 કિલો ના કેટલા હશે 30 रुपीज़ पर केजी 30 રૂપિયા પર કેજી. या हाँ એટલા મળતા હોય અમારા ત્યાં. મને થોડો પણ આઈડિયા નથી ટોમેટોનો, તો ફ્રૂટ્સનો આઈડિયા છે, ટોમેટોનો નથી. એટલે મમ્મીએ ક્યારે આમ મોકલ્યા લેવા માટે ટમેટા કે કઈ શાકભાજી? બસ એટલે મને ફ્રૂટ્સનો ખબર છે, શાકભાજી મને નથી ખબર. એટલે હા મમ્મીએ કદી આમ ઘરમાં એવી વાતો બી કરી કે યાર આ તો બહુ મોંઘું થઈ ગયું, આ શાકભાજી બહુ મોંઘી થઈ ગઈ? હા એ તો થતી હોય છે. પેલા ઓનિયન પહેલાં થોડા મોંઘા થઈ ગયા હતા ત્યારે થતી હતી એવી. હા એટલે હું તમને કહી દઉં, તમને ધ્રાસકો પડશે સાંભળીને, પણ 100 રૂપિયા કિલો છે. હે સાચેમાં? ઓ માય ગોડ, મને બી નહીં ખબર હતી. મોંઘવારીના મુદ્દા ઉપર આમ યુવાનો ક્યારે બોલતા નથી, પણ આપણે એ વસ્તુ ઉપર ફોકસ કરવો પડે, કારણ કે આપણા ઇકોનોમીથી જ આખો દેશ ચાલી રહ્યું છે. તો મિડલ ક્લાસની મોંઘવારીથી કેટલો ફરક પડે? एक्चुअली બહુ પડે, કેમ કે અમારા ત્યાં તો ટમાટર ઇઝ લાઈક હર દિવસે અમે લેતા હોય, અને આટલું વધારે તો અમારે ઇફેક્ટ બી પડશે અમારા ઇન્કમ અને એના ઉપર. ક્યાંથી છો? સાઉથ બોપલ, રાઈટ. તમે? ગાંધીનગર.
તમારું શું માનવું છે કે મોંઘવારી ઉપર યુવાનોએ શું વિચારવું જોઈએ? મોંઘવારી ઉપર એમનો મતલબ મોંઘવારી એટલે પૈસા બહુ ખર્ચ નહીં કરવાના, એ તો મેન તો એ જ હોય. આપણા મમ્મી પપ્પા પણ એવું કહેતા હોય. બીજું તો પછી આપણે થોડું જાતે કમાવા પર વિચારી શકાય કોઈ રીતે. કેમ કે કોલેજમાં છીએ તો કંઈ પણ આપણે કંઈ સ્ટાર્ટઅપ કંઈ વિચારી શકાય સ્ટાર્ટિંગમાં, પછી જોવાય આગળ કંઈ. બીજું તો કંઈ ખાસ. क्या नाम है आपका? विनायक, अश्विन, આકાશ अच्छा, आप किस में पढ़ते हैं? मैं MBA कर रहा हूँ अभी, फुल मैनेजमेंट। MBA अच्छा, सब मैनेजमेंट में है। तो आपको पता है कि ये टमाटर की कीमत क्या है अभी 1 केजी की? प्रॉबेबली 40, 30 to 40। 30 से 40 हाँ। रुपए किलो। अराउंड 100 रुपीज़ है शायद अभी. अच्छा, क्या लगता है मतलब कितनी होगी? अराउंड इतना ही होगा, 40 तक ही होगा। 40 पसंद है टमाटर? पसंद है सब्जी में? हाँ, पसंद तो है। हाँ पसंद तो है. अच्छा, कभी घर से भेजा है बाहर कि टमाटर लेके आओ या कोई सब्जी लेके आओ? हाँ हाँ, इसलिए बताया इतना। मम्मी तो भेजती रहती है। लास्ट कब गए थे? एक्चुअली मैं यहाँ से नहीं, अभी थोड़े दिन पहले यहाँ, तो हमारे यहाँ इतने का ही मिलता है ऐसा। लास्ट तो 1 महीने पहले गया था। 1 महीने में इसका भाव बहुत बढ़ गया है भाई। कितना हो गया है? राइट, 100 रुपए किलो है। 100 रुपये किलो हो गया है? बाप रे। न्यूज़ देखी थी कल मैंने, शायद अराउंड 100 रुपीज़ ऐसा हो गया. वैसे युवानों को महंगाई से और वो सारे मुद्दों से इतना फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं और काम में लगे रहते हैं। पर बेसिकली मिडिल क्लास को कितना फर्क पड़ता है महंगाई से? हाँ, मतलब उनको महंगा पड़ता है खरीदना, और वो डिपेंड करता है कितना अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज का। मतलब टोमेटोज अवेलेबल नहीं होंगे इसलिए महंगे हैं। गरीबों को जो है, जो रेडी लगाते हैं या फिर जो मजदूरी करते हैं, उनके लिए ये बेसिक चीज़ें लेना बहुत महंगा हो जाता है प्राइस इन्फ्लेशन के कारण। इसी वजह से उनके जो उनका बजट है वो पूरा बिगड़ जाता है। आई मीन लाइक ये जो बेसिक नीड्स है, फ्रूट्स वेजिटेबल, इनके प्राइस अगर इतने हाई रहेंगे तो प्रॉब्लम्स तो होती है लोगों को, तो इसलिए शायद इतने प्राइस हाई होंगे. प्रॉब्लम क्या है पता है? कि हमको ऐसा लगता है कि जो किसान है उसको पैसे मिलते हैं, पर नहीं ना, हम महंगाई से मर रहे, हम रो रहे, किसान भी वही रो रहा है कि उसको पैसे नहीं मिलते. तो पैसे जाते कहाँ पे है? गवर्नमेंट के पॉकेट में शायद. कोई मिडल मैन होगा वो ले लेते होंगे. यही आंसर बनेगा. શું નામ છે તમારું? હર્ષિત કવા, અચ્છા, હર્ષિત, આ શું છે ખબર છે ને? ટમેટા અચ્છા, આ ટમેટાની કિંમત શું હશે? શું લાગે છે? અરાઉન્ડ 20 રૂપીસ કિલો? કેટલા છે? અરાઉન્ડ 500 ગ્રામ હશે. આ નહીં, આમ કિલોના કેટલો ભાવ હશે? અચ્છા, કિલોનો અરાઉન્ડ અત્યારે 80 રૂપીસ પ્લસ હાલે છે, એટલું મને ખબર છે. તમને ભાવે ટમેટા? હા, હું કહું સાચો ભાવ? કયો? 100 રૂપિયા કિલો. હા, મેં કીધું તો 100 રૂપીસ જેવું હાલે છે. તો આ બહુ મોંઘું નથી આમ મિડલ ક્લાસ માટે? હા, એકચ્યુઅલી મિડલ ક્લાસ માટે મોંઘું તો છે, બટ શું કરીએ હવે. ફરક પડે એનાથી ભાવ વધવાનો? હા, ફરક પડે. જેમ કે અત્યારે મેસ છે તો મેસમાં પહેલાં ટમેટા હતા, બટ હવે ટમેટા નથી મળતા, હમણાં રેટ વધી ગયા છે, તો એવું છે. અને ઘરમાં અને પરિવારમાં મમ્મી આમ કચકચ કરતી હોય ને કે ટમેટા મોંઘા થઈ ગયા, લીંબુ મોંઘું થઈ ગયું? ના, એટલું તો નથી થતું. કે મમ્મી એટલીસ્ટ કે ટમેટા આ છે તો અત્યારે ખાઈ લો, વાંધો નહીં, જે લિમિટેડ અત્યારે મળી જતા એ છે, બટ ન્યુટ્રિશન માટે મમ્મી આ પાડી દે છે. क्या नाम है आपका? कृतिक, यशवर्धन, क्षितिज. यश. अच्छा, आप सब एक ग्रुप से हैं? अच्छा, ये टमाटर है, पता है ना? हाँ हाँ ये पसंद है आपको? हाँ हाँ, सबको पसंद है. हाँ पसंद है सब्जी में अच्छा लगता है? बहुत. बिल्कुल. अभी मैस में मिलता है ये ऐसे ही खाने को? हाँ मिलता है. ऐसे खाने के लिए नहीं मिलता, सैलेड में नहीं मिलता, बट सब्जियों में मिलता है। अच्छा, क्या लगता है इसकी कीमत क्या होगी 1 केजी? आई थिंक अभी इसकी रेट डबल हो गई थी, मैंने ऐसा सुना था शायद, तो आई थिंक अराउंड 80 to 90 किलो. 50-60 रुपीज़ पर केजी। इंदौर में जब आखिरी बार खरीदा था तब 40 रुपए था. कब आखिरी बार खरीदा? हो गए 1-2 महीने हो गए होंगे इजीली. 60-65 आई गेस. 50 पर केजी. 50-60 पर केजी। मैं धर्मा प्रोडक्शन का धन ने धन करूं? नहीं, 100 रुपए किलो है। आई वॉज क्लोज, आई वॉज क्लोज, आई वॉज क्लोज. बाद में मैंने 120 इतना बढ़ गया आई वॉज क्लोज. यहाँ पे ही हर जगह। 80 to 100 समथिंग. आई वाज क्लोज. तू क्लोज नहीं था, मैं क्लोज। मैंने गैस करने के पहले बोल दिया था. मेरा हाफ था, मैं तो बिल्कुल क्लोज नहीं था. मैंने 60-50 था भाई। अच्छा, ये कितना फर्क पड़ता है अगर महंगा हो रहा है तो? काफ़ी पड़ता है, मतलब लोग खरीदना ही बंद कर देते हैं क्योंकि जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते फिर.
काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मतलब यूजुअली अगर हम देखे जाए तो सैलड्स में खाते हैं, अगर प्राइस बढ़ता है तो सैलड छोड़ के फिर सब्जी में ही कम कर देते हैं, तो फ़र्क तो बहुत पड़ता है उसमें। माइंस आर ऑल्सो सेम। इनफैक्ट इतना महंगा कैंटीन में नहीं मिलता सैलड के लिए। अच्छा, मम्मी किच करती है ना, भाव बढ़ गया तो कम खाओ या यूज कम करो। नहीं, नॉट रियली। होती है मम्मी भाई अंदर हो जाती है खिचखिच। अगर खिचखिच होती है અમારામાં તો મારી મમ્મી એવું કહે કે આમ બારે જઈને જો લારીએ ત્યારે ખબર પડશે કેટલું મોંઘું છે એમ, આ લોકોને ગુજરાતી નહીં આવડતી એટલે જ કહું છું. અમે બંને કાને અહીંયા ના છે એટલે તમને ખબર પડે ને હું શું કહું? હા ખબર પડે જ ને અમને તો તમે છેલ્લે ક્યારે શાકભાજી લેવા ગયા હતા? આયો તો નેવર નો આ તો 4 મહિના પહેલા, 2 મહિના પહેલા. હા, તમે ક્યારે ગયા હતા છેલ્લે? मुझे समझ आई डोंट नो 1 ईयर मे बी. हाँ, एक महीना पहले। तब क्या भाव था? नहीं टमाटर नहीं इतना तब कुछ और लिया था। हाँ आलू प्याज लेने गया था। धनिया का भाव पता है कितना है? धनिया 10-15 10 रुपए का लेके आते हैं। तब मैं 20 रुपए का 250 लिया था। 250 ग्राम याद नहीं है। हाँ 10-15 100 रुपए धनिया क्या बात कर रहे हो? रुपए किलो है 50 रुपए भाई। 20-10 रुपए की ठीक है, 10-20 रुपए की मैं सबको ही नहीं हाँ, कोई नहीं देगा फ्री में। तो ये धनिया की बात है, मतलब इतना होता है? साइड में मिलता है, मम्मी बोलती है दे दे भाई। चाहिए टमाटर ले लीजिए, और क्या दे देंगे आपको। 15 रुपए का एक होगा। नहीं लूंगी। चाहिए? इसको दे दो। हाँ हाँ, वो तो मेरे को बॉडी देख के पता पड़ रहा है। खाना और चाहिए तो तू ठीक है। अभी ये शौक में रहना कि ये क्यों बढ़ रहा है महंगाई इतना। डिस्कशन होगा इसका, डिस्कशन करेंगे। पैसे भर दिए मैस के हमको कितना भले महंगा हो, हमने तो पैसे भर दिए। और वैसे इकोनॉमी पे ही चलता है देश, और ना मिडिल क्लास को अच्छे से कुछ मिल रहा है, ना किसानों को कुछ मिल रहा है, तो पैसे जा कहाँ रहा है और इतना महंगा हो कहाँ रहा है? पॉलिटिशियंस की जेब में। रीजन क्या है महंगा होने का? यही बारिश और वो सब, और मिला नहीं है, खेती में बहुत सारा नुकसान और वो सब हुआ है। That's the reason, मतलब और प्रॉब्लम क्या है, जब 3 अलग अलग स्तर से निकलता है ये, मतलब किसान तो कितने में ही बेचता होगा, उसको तो किलो के शायद 20 रुपए भी नहीं मिलते होंगे। हाँ, वो बीच के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत, मतलब किसान तो रोते ही है कि हमको पैसे मिलते ही नहीं है, और हमको पता नहीं होता है ना, क्योंकि हम तो एसी वाले रूम में बैठे हैं कि कितना महंगा हुआ है। मजबूरी में लगवाना पड़ा। क्या? वो भी बहुत रो रो के लगवाना पड़ा। तो गर्मी है इसलिए। ठीक है, आप कहाँ से? जबलपुर से। जयपुर। क्या नाम है आपका? समानता अग्रवाल। अच्छा, ये टमाटर है, पता है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? शिवना। सृष्टि। अच्छा, तीनों लड़कियों से पूछ रही हूँ कि क्या लगता है इसका प्राइस क्या होगा 1 केजी का? 25 रुपए 1 केजी का। हाँ 25 रुपए 80 रुपीज। 20 रुपीज पर केजी। पर केजी 20 रुपीज। लास्ट टाइम कभी गए थे सब्जी लेने? एक्चुअली मैंने शायद 500 का बोला था, 500 ग्राम से शायद 25 रुपए। वो भी 50 रुपए हुए कि? हाँ 50 रुपए होंगे। 80 रुपीज केजी। मैं अभी गई थी 20 रुपीज में 1 केजी लेके आई थी, मतलब आफ्टर बिफोर 1 वीक। कहाँ से? बरेली में गई थी, होम टाउन। आपको क्या लगता है क्या होगा 1 केजी? ये मेरा डोमेन तो है नहीं, मगर फिर भी अगर मैं बताऊं तो 20 रुपए में आ जाने चाहिए। ये 4 टमाटर। नहीं 4 नहीं, किलो बोल रही हूँ। किलो कितने में? 25 कर दूं, 25 में आ जाए। 25 रुपए के किलो? मैं जाऊंगा तो मैं तो 25 में ही लेके आऊंगा। हमारे वहाँ तो यही रेट है। मैंने ब्लिंकिट पे चेक किया तो शायद 54 रुपीज़ है 1 केजी। किलो? हाँ 50-40 रेंज में ही होगा कभी। लास्ट टाइम कब गए थे सब्जी लेने? 2 हफ्ते में, वो भी होम टाउन महाराष्ट्र। अगर मतलब न्यूज़ में आ रहा है तो कुछ बढ़िया काम किया होगा, तो 60 से 80 रुपए किलो तो होगा ही। क्या लगता है, फिर भी गैस कीजिए क्या? मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा प्राइस होगा, 70 रुपीज़ तो होगा ही। सबको ऐसे शॉक कर दूं? 100 रुपए किलो। आई वाज नियर। कहाँ से नियर? 80 रुपए का फर्क था, तुम दोनों का मिला के हो रहा है वो। ब्लिंकिट में शायद 54 हाफ केजी दिखा रहा था फिर। अब से टमाटर छोड़ दूंगा बस। अब अगर इतने महंगे हैं तो कौन खाए? मेस में तो मिल ही रहा है टमाटर।
मेस में शॉर्टेज नहीं है, दिखा तो नहीं। मेस में हमें कल ही सब्जी थी। इस बार शॉर्टेज तो किधर भी नहीं है, प्राइस बढ़ गया। हाँ तो मेस में तो मिल रहा है तो हैप्पियर। अच्छा, मिडिल क्लास को कितना फर्क पड़ता है अगर भाव बढ़ जाता है? डेफिनेटली पड़ता है, 20-30 रुपीज़ केजी भी लेता है। मुझे नहीं लगता इतना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कभी कभी सस्ता होता है, कभी कभी महंगा होता है। तो अगर अभी हम सिचुएशन देखें तो इस टाइम पे तो अनयूजुअल रेन कंडीशंस की वजह से कुछ चीज़ों पे असर पड़ा भी है। तो उसकी वजह से कुछ टाइम के लिए महंगा हुआ है, ऐसा तो यानी साल भर महंगा ही रहता है। तो इतना तो हर कोई मैनेज कर सकता है। मैनेज कर सकते हैं। हाँ। पसंद है टमाटर? टमाटर का प्राइस अगर ज़्यादा है तो नहीं पसंद है, प्राइस थोड़ा लेस है तो पसंद है। और वैसे भी ये फ्रूट तो सारा सा मतलब ये वेजिटेबल तो सारा साल मिल ही जाती है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम है नहीं। और मैं ज़्यादा खाता हूँ नहीं। आलू के प्राइस से फ़र्क पड़ता है मुझे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और मैं इसकी फीस तो दी हुई है, ज़्यादा महंगा हुआ तो यहाँ से खरीद के दिल्ली भिजवा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं। सब जगह पे इतना ही महंगा है। तो नहीं खाएंगे जब तक सस्ता नहीं होता है। हमारी तो खुद की खेती है, मजा ही हमारी बाड़ी है। मतलब मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो हम ये सब ग्रो करते हैं। हाँ, तो मतलब मुझे किसान का समझना है, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं कि किसान हमेशा रोता रहता है, उसको पैसे नहीं मिलते, और मिडिल क्लास भी एक तरफ रोता रहता है कि भाई इतना महंगा हो गया, तो पैसे जाते कहाँ से और किसान को क्यों नहीं मिलते अगर इतना महंगा है तो? मैंने ऑब्जर्व किया है, मतलब अपने मेरे दादा ये सब करते थे प्रोग्रेस। तो जो मिडिल मैन है ना, वो पूरा पैसा ले जाता है, क्योंकि ये लोग जो वहाँ से खरीदते हैं ना, जब पर एकड़ के हिसाब से या पर क्विंटल के हिसाब से, तो वो रेट बहुत कम ही रहता है। और उसके बाद जब वो एक प्रोसेस फॉलो होते होते आगे बढ़ता है, लास्ट तक जाता है ना, तो वो महंगा हो जाता है। इसलिए सरकार ने वो 3 फार्म्स लॉ लाए थे, तो उसको भी अपोज कर दिए लोग। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो फार्म लॉज हमारे लिए अच्छे थे। अब आप ट्रैक्टर लेके अगर डेली ब्लॉक करके बैठ जाओगे तो कुछ मिलेगा थोड़ी। किसी चेंज के लिए आपको लॉज तो लेके आने चाहिए ना, और वो चेंज बीजेपी कर रही है, तो फिर आपको फार्म लॉ चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, ये चाहिए, फिर आपके टमाटर भी महंगे हैं। आपको अगर सब चीज़ चाहिए तो फिर या तो आप गवर्नमेंट का साथ दो, और कुछ नहीं चाहिए तो ऐसे ही। मिडिल क्लास का क्या? मिडिल क्लास का है, मतलब मेरे हिसाब से तो जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए फार्म लॉज लेके आए थे वो बढ़िया थे। अगर वो आ जाते तो इतना प्राइस इसका नहीं शॉर्ट अप होता। और अभी एज ऑफ नाउ इसका